Hello students, welcome to online class of math of class 3. Student, we have already completed chapter 5 division. Now today we are going to start the next chapter, chapter 6 more division. So let's start our chapter. So student, your sixth chapter is chapter 6 more division. So before we start the chapter, you have to gear up yourself. So see here question number 1. For that, there were 3 trees in a garden. 18 birds came to the garden and sat on the trees. If an equal number of birds sat on each tree, how many birds were there on each tree? So what is telling here that there are 3 trees. See here in the picture, there are 3 trees and 18 birds come to that garden to sit on the trees. ट्रीज पे बैठने के लिए 18 ठो बर्ड्स आए. अब तीनों ट्री में अगर इक्वली बर्ड्स बैठे तो टोटल कितने बर्ड्स हुए? वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि हाउ मैनी बर्ड्स वर सिट ऑन ईच ट्री, मतलब हर ट्री में कितने ठो बर्ड्स बैठे. So here see, we have to find out what in the previous chapter we learn how to divide. So see here, how many birds are there? 18. Yes, here 18. Now how many trees? 3. So 18 divided by 3 equal to how many birds we have to how many birds on each tree seat, we have to find out that. So see here, the first method which we learn in the previous chapter, that is 3 into 6 we get 18. So therefore 18 divided by 3 equal to 6. So in the 3 table we get 18 when 3 is repeated, subtraction is done 6 times. So we get 18. Therefore 18 divided by 3 equal to 6. So this is your simple division which we learn in the previous chapter. Now you have another method for division. See here, your second method is see here. This is told as long method. इसको लॉन्ग मेथड बोला जाता है. देखो कैसे करेंगे. 3 सो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 जार. So 3 6 जार 18. So 18 minus 18 we get 0. So we can say that dividend equal to क्वेश्चन अपॉन डिवाइज़र. हुआ. डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन अपॉन डिवाइज़र करने से हमको डिविडेंड मिल जाएगा. हुआ. तो ये चीज़ें तुमको याद रखना है. तो अब हमको पता चल गया कि ईच ट्री में कितने बर्ड्स थे. 6 बर्ड्स हर एक ट्री में बैठे हुए थे. दैट मीन्स 6 trees on the 3 trees 6 birds are sitting on each tree. So this is your question number 1. Now see second. So therefore there were 6 birds on each tree in the garden. So garden में हर ट्री में कितने बर्ड्स बैठे? 6 तो ट्रीज बैठे हुए थे. नाउ अब सेकंड देखो नंबर 2. ऑन द स्पोर्ट्स डे इन ए स्कूल 54 students took part in the football tournament. If there were 9 students in each team, find out how many teams were there in the football tournament. So what is telling here कि स्पोर्ट्स डे में 54 स्टूडेंट जो है उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया. अगर 9 स्टूडेंट हर एक टीम में हैं तो कितना ठो टीम फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? यस. सो क्या करेंगे? क्या फाइंड आउट करना है हमको? ग्रुप फाइंड आउट करना है. टूर्नामेंट कितना ग्रुप टीम बना है तो ग्रुप हुआ. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? यस, वी हैव टू डन डिवाइडेड. सो क्या करेंगे? 54 डिवाइडेड बाई 9. सो व्हाट वी गेट? यस, 9 के टेबल में 54 कब आता है बोलो? यस. सो क्या होगा? 9 के टेबल में 54 कब आता है? 9 6 जार 54. सो we get 9 into 6.
सो 9 इंटू 6 वी गेट 54. सो 9 6 54. सो डिवाइड करने पे हमको कितना मिला 6. तो देयर फोर हाउ मेनी टीम्स वेयर देयर इन द फुटबॉल टूर्नामेंट? 6 टीम्स वेयर इन द फुटबॉल tournament. अब see number 3, what is given here? Divide. So we have to, so here see divide. We have already seen in the second method how we divide it. So here also we done like that. So see how many, so think of 2 times what gives 14. 2 के टेबल में 14 कब आएगा? थिंक करो, बोलो. Yes, 2 sevens are 14. So we do, yeah, and we have to write first in ones place. हमेशा पहले ones place में लिखेंगे, उसके बाद 10th place पे लिखेंगे. हुआ, तो अब ये हुआ तुम्हारा 2 sevens are 14. So 14 minus 14 कितना हो गया? 0. अब उसी तरह से बी नंबर देखो, 5 के टेबल में 30 कब आएगा? यस, बोलो. 5 के टेबल में 30. 5 6 are 30. So here 30 minus 30 we get 0. Now C1C 7 के टेबल में 28 कब आता है? बोलो. यस, 7 4s are 28. So here 28 minus 28 we get 0. Now CD1 8 के टेबल में 64 कब आएगा? बोलो. यस, सो 8 के टेबल में 64 कब आएगा? 8 8 जा, सो 8 8 जा 64. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 0. सो दिस इज योर नंबर 3 डिवाइड हुआ. अब देखो, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि लॉन्ग जो है लॉन्ग मेथड कैसे किया जाता है, तो वो पढ़ेंगे. अब उसमें जो है रिमाइंडर जब डिवीजन में रहता है तो वो कैसे रिमाइंडर रहता है वो देखो. क्या होगा? पुट 10 बीट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 ईच. सो क्या बोला गया है यहाँ पे? जो है 10 बीट्स दिया गया है और 10 बीट्स को इक्वली ग्रुप 3 3 का ग्रुप बनाने के लिए बोला है. तो देखो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा? 1 ग्रुप, हियर 2 ग्रुप, हियर 3 ग्रुप. 3 ग्रुप बना और 1 जो है वो रह गया है. तो हम लोगों ने क्या देखा कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच इन 10. 3 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच इन 10. 10 में जो है 3 ग्रुप्स का 3 का 3 ग्रुप्स बन रहा है. एंड 1 बीट इज लेफ्ट, और एक बीट जो है लेफ्ट हो जाता. तो कई बार क्या होता है डिवीज़न में ऐसे कुछ लेफ़्ट ओवर रह जाता है और उसी को जब हम लोग ग्रुप करते हैं तो हम लोग एबल नहीं हो पाते हैं कि इक्वली उनको ग्रुप कर सके. कई बार ऐसा कंडीशन भी हो जाता है कि हम लोग ग्रुप करते वक्त पूरा हम लोग उसको इक्वली ग्रुप नहीं कर सकते हैं और कुछ ना कुछ जो है रह जाता है. तो ऐसे में जो रह जाता है द नंबर दैट इज़ लेफ्ट, तो जो नंबर लेफ़्ट ओवर हो जाता है डिवीज़न में उसको बोला जाता है रिमाइंडर. सो जब भी अगर पूछा जाए कि द नंबर दैट इज़ लेफ़्ट ओवर इन डिवीज़न, तो व्हाट इज़ टेलिंग दैट? यस, दैट इज़ योर रिमाइंडर. उसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है. अब देखो यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल कि 10 डिवाइडेड बाई 3. सो 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं, लेकिन 10 से जो छोटा डिजिट है वो आता है. तो 10 से छोटा नंबर कौन सा आएगा? 3 3 जा 9. सो 10 minus 9 we get 1. So here this is your number of groups, that is your question, and this is your number in all, that is your dividend, that is 3 into 3, and this one be your number left over, which is your remainder, and this is your number in each group. ये जो है नंबर तुम्हारा each group में, इसको बोला जाता है divisor. So students, see here what is this? Is your question, this is your remainder, this is your dividend, and this is your divisor. So the remainder must always be smaller than the
डिवाइज़र। हमेशा ये याद रखना कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीज़र से क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉलर देन होता है। कभी भी रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से बड़ा नहीं होगा। हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से छोटा ही होता है, दैट मीन्स स्मॉलर देन होता है। हुआ, तो ये हुआ रिमाइंडर कि जो नंबर लेफ्ट ओवर हो जाता है ग्रुप में उसको बोला जाता है रिमाइंडर। अब देखो सेकंड, लॉन्ग डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। अब लॉन्ग डिवीज़न को विदाउट रिमाइंडर कैसे किया जाता है, उसमें रिमाइंडर अगर नहीं बचता है तो देखो उसका एग्जांपल क्या दिया गया है, 8 डिवाइडेड बाई 2। सो हियर 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 जार। सो 2 4 जार 8, 0 आया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर, that is 2 into 4. So when we multiplication factor is here, so 2 into 4 we get 8. So here 8 and there will be 0, so there will be no remainder. हुआ, रिमाइंडर नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या मिला हमको, 4। तो हमको 2 को इस तरह से सोचना है जिससे कि हमको 8 मिले। हुआ, तो देखो हमने 2 को कितनी बार सोचा, 4 बार। सो हमको 2 4 जार कितना मिला, 8। सो हियर योर आंसर इज 2 4 जार 8। सो दिस इज योर 4 इज योर आंसर एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर। विदाउट रिमाइंडर बोला गया है तो हमको लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर मतलब कुछ नहीं बच रहा है, लेफ्ट ओवर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 है इसलिए ये क्या हो गया, 0 है तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज योर डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। Now see another example, 36 divided by 4. Up think of 4 what gives 36. अब 4 को सोच के बोलो कि 36 कितना कब होगा, तो 4 कब हमको 36 दे सकता है, तो 4 के टेबल में 9 कब आता है, 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 जार। सो हियर 4 9 जार 36, so we get 0 and this is your question and this is your remainder, that means remainder is 0, so there is also no remainder, so this is also without your remainder, that is your answer. So here this for this equation your answer is 9। तो हमको ऐसा करना है कि विदाउट रिमाइंडर जब होगा तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। तो अब इससे रिलेटेड जो है हमारा ब्रैकेट दिया गया है, तो देखो सॉल्व बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट, from this by this example you have given related some question here, crack it. So what is given here, solve by the long division method. We have to solve this by the long division method. So see here number 1, what is given number 1, 12 divided by 4. So by long method we have to write here divisor. So what is our divisor, yes, tell me, 4. So we write here 4. Now this and here 12. So अब सोचो 4 के टेबल में 12 कब आता है, यस बोलो क्या होगा, 4 3 जार। So 4 3 जार 12. So 12 minus 12 we get 0. So this is your without remainder. Now second B1, see here 15 divided by 5. So 5 will be your divisor and we write like this. So अब 5 के टेबल में 15 कब आता है सोचो, तो 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 जार 15. So here we get 15. So we get 0. तो हमारा डिवाइज़र हुआ 5, क्वेश्चन हुआ 3, डिविडेंड हुआ 15 और यहाँ कुछ रिमाइंडर तो कुछ नहीं है तो ये 0 हुआ रिमाइंडर। अब यहाँ पे सी देखो क्या बोला गया है, 28, तो 7 इज़ ए डिवीज़र। अब इसको लिख देंगे हम लोग ऐसे और 28 करेंगे, तो 7 के टेबल में 28 कब आता है, 28 डिवाइडेड बाई 7 दिया गया है, तो 7 हुआ हमारा डिवीज़र और डिविडेंड क्या हुआ 28। हमको ब्रैकेट के अंदर जो दिया रखा जाता है, डिवीज़र को ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है, डिवाइड के साइन के बाहर, और डिविडेंड को अंदर रखा जाता है। हुआ, तो ऐसे करके रखना पड़ता है। अब देखो 7 के टेबल में 28 कब आएगा, 7 4 जार, सो 7 4 जार 28. सो हियर 28 minus
वी गेट 0 हुआ। अब उसी तरह से डी नंबर देखो क्या बोला गया है, 8 व 40। तो अब 8 के टेबल में 40 कब आता है, 8 के टेबल में 40, 8 के उसमें सोचो कब आएगा 40, तो 5 जार, सो 8 5 जार 40, सो हियर वी गेट 0 हुआ। एक 0 भी लिख सकते हैं, डबल 0 भी कर सकते हैं हुआ। अब देखो तुम्हारा ई नंबर 45 डिवाइडेड बाय 5। सो अब तुम लोग पहले लिखोगे डिवाइज़र ब्रैकेट के अंदर साइन के अंदर, फिर डिविडेंड लिखोगे अंदर में हुआ। उसके बाद देखो 5 के टेबल में 45 कब आता है, 5 के टेबल में 45 कब आएगा बोलो, 9 जार। तो क्वेश्चन को लिखेंगे ऊपर 5 9 जार 45, सो हियर वी गेट 0. In the same way, F number, we write 9 outside the division sign, we write 9 outside, then dividend 63 inside, and now we have to solve it. So 9 के टेबल में 63 कब आता है, so 9 के टेबल में 63 कब आता है, 9 7 जार 63, so 9 7 जार 63, so we get 63 and we write 0 0 हुआ। तो इसका आंसर हमको क्या मिला, 63 डिवाइडेड बाय 9 वी गेट 7। सो लॉन्ग मेथड में ऐसा किया जाता है। लॉन्ग मेथड में हमको डिविज़र को बाहर रखना पड़ता है, डिविडेंड को अंदर, और क्वेश्चन ऊपर रहेगा या इधर साइड में भी रखने से होता है, और रिमाइंडर 0 रहेगा। अब तुमको ये मालूम है कि ये हुआ तुम्हारा क्या, डिवाइज़र, ये हुआ तुम्हारा क्या, डिविडेंड, एंड दिस विल बी योर क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ अगर कुछ लेफ्ट ओवर हो जाता है तो वो होता है तुम्हारा रिमाइंडर। सो स्टूडेंट, अभी तुम्हारा जो है चैप्टर हो चुका है, चैप्टर स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं, क्रैकेट कर चुके हैं, तुमको पता चल गया है लॉन्ग मेथड डिवीज़न कैसे करना है हुआ। तो इसको तुम लोग अपने कॉपी में लिखो, करो हुआ। तुमको ये अपने कॉपी में करना है, इसको लिखोगे, और क्रैकेट को भी अपने कॉपी में करना है। यही तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसको अपने कॉपी में करोगे बिना देखे। समझा दी हूँ मैं तुमको, अब तुमको इसको बिना देखे अपने कॉपी में करना है। Now student, you come to know about how we have to done long division method without reminder and what we called this number, which are divisor, which is dividend, and which are question and which is reminder. So read it and do it in your do crack it in your copy.